Hello, hello students. Good morning. And once again, I welcome you on YouTube channel of schools. Let us discuss some examples on set. We have studied that a set is represented by a capital letter A, B, C, etc. And its elements are enclosed within the curly bracket. All elements are written in curly brackets separated by comma, and there are some standard number system which I want to told you here, whose notation is there are some reserved key letters which are used to represent the number of sets. Suppose I am talking about set of natural number, so I have written all the numbers because there is short of time. So please see it, and this will be also uploaded on your school's websites. You can find out there, page number 6, the set of natural numbers. The set of natural numbers is represented by, it is n. Either it is written in bold letter or it is n, and I doubled this line. This line I doubled. I draw the line doubled. So it is our a method to represent the all the set of natural numbers, but you can also write it is as like this, set of natural number. Either it is written like n, capital N, or capital N, but if I double this line, so either it is I double this line or there will be a bold line will be written in book. So therefore it don't matter whether I double line or not, but it is capital N always represent a number set. If I double line, so it is a reserve key letter for that set. Suppose, and similarly the set of whole numbers, all natural number including 0. So within curly bracket, this is represented by W. I double this line, so it is differ from simple W, but you can write it as like this, no problem. ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी. ये देखिए, ये अपना तरीका होता है. तो ये एक तरीका मेरा है कि मैं इस लाइन को डबल कर देता हूँ. आपको और हायर क्लास में इस तरीके का नोटेशन मिलेगा. यू कैन फाइंड आउट द इन हायर क्लासेस, बट हेयर यू कैन सिंपली राइट W. एंड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई Z. तो यू कैन राइट Z like this, and if I write this and I double this, so therefore there is no difference between these and these. You can use notation this and also n, simply n, but always remember that Z represent the numbers of integers. So these are the number of integers 0, 1, 2, 3, 4, and negative natural numbers with negative signs. And Z plus, if I write Z plus, so all positive integer. 0 is neither positive nor negative. It is the negative integers. It is neither negative nor positive. Positive integers are only 1, 2, 3, 4. That is also called natural number. तो पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर सेम होते हैं. आप जैसा समझिए. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Z प्लस R N. There is no difference between natural number and set of positive integers. Set of negative integers Z's on upper side I have write here minus. To read as Z minus, Z plus, Z minus. It consisting of all negative integers. Set of rational numbers, it is represented by simply Q. You may see that the set of rational numbers, that is परिमेय संख्याएं. तो set of it is, you can also write Q, and I if doubled it, so this is my method to represent a set of natural number. It is consisting of all those A over B such that A, B are integer. It is written as what? How can I read this notation? Set of rational numbers consisting of all those elements of type A upon B or A over B such that A and B belongs to the set of integer. It is Z. Set of integers. A and B are set of, it belongs to the set of integer. That it means that A and B are integers. And here it is not Q, this is B, because I am using B. So and B is not equal to 0. Okay.
दिस सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आई आर क्यू कॉम्प्लीमेंट. ये क्यू के ऊपर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो दिस इज द नोटेशन ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट. इट इज रीड एज क्यू कॉम्प्लीमेंट. आर इसको सिंपली आई से डिनोट करते हैं. तो इरेशनल नंबर आप जानते हैं, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स. दिस साइन इज रीड एज सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर. यानी अगर एक्स रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा. दुनिया का कोई भी नंबर, हमने आपको बताया था, आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचेंगे दैट विल बी आइदर रेशनल और इरेशनल. तो अगर वो रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा. ओके. सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय सिंपली आइदर आर और लाइक दिस. तो दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर और एक्स बिलोंग टू द सेट ऑफ इरेशनल नंबर. इट इज इरेशनल नंबर. तो आइदर वो रेशनल हो या फिर रेशनल हो, इरेशनल हो. कोई भी नंबर अगर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा. अगर रेशनल हो तो भी वो रियल नंबर है, इरेशनल है तो भी रियल नंबर है. और दुनिया का कोई भी नंबर या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल. एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन यू आर सॉल्विंग. तो वी हैव गेट sometimes if discriminant is less than 0 then we have get a solution in form of iota. तो complex number C, simply it is also written as like this C. It is consisting of which type of element? A plus iota B, such that A and B belongs to the R, means that A and B are real number. A and B, these two are real number. And what is the I? I is equal to under root minus 1, or we can say that I square is equal to minus 1. ठीक है. ओके. तो दीज आर स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ नंबर सिस्टम. तो इनको हम लोग नंबर सिस्टम, अगर हम कहीं क्यू लिखेंगे इसका मतलब वो रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है वो सेट. अगर कहीं हमने सी लिख दिया, कहीं सी लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसको देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपको वीडियो में ना दिखाई पड़ा हो इसके पहले, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दो सच टाइप एलिमेंट ए प्लस आयोटा बी. A, B are real number and I square is equal to minus 1. Okay. Now representation of set. There is two ways to represent a set. दो तरीके हैं. किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के बच्चों दो तरीके होते हैं. अब उन तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे. इसको तो आपने पढ़ लिया, इसको हम हटा देते हैं. लेट अस रिमूव इट. एंड देयर आर, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. अब देखिए, ये वीडियो चूँकि 10 मिनट से ज़्यादा बन नहीं सकता है, और वीडियो जो हम लोग अपलोड करते हैं वो ब्लर हो जाता है, वहाँ पे कंप्रेस कर दिया जाता है. तो अब ये इसलिए साफ आपको दिखता नहीं है. हमने कई बार उसको पढ़ने की कोशिश की, मैं खुद नहीं उसको समझ पा रहा हूँ. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसलिए हम लोग बोल भी रहे हैं ताकि आपको समझ में आए. ये पार्ट 4 वीडियो है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बच्चों. तो फर्स्ट जो पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड, ROSTER, रोस्टर मेथड. आर, इट इज आल्सो नोन एज टेबुलर मेथड. टेबुलर मेथड, इसको बात को आप यहाँ समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू. सपोज दैट मैंने एक सेट ले लिया, A इक्वल टू ऐसे ले लिया, ABCD. ठीक है, ये एक तरीका ये हो गया. और मैं अगर इसी सेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ, A इक्वल टू, बस आप इस एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ जाएंगे. A इज इक्वल टू, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट X सच दैट, दिस लाइन रिप्रेजेंट सच दैट X इज अ लेटर बिफोर E. ई मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर ई है उसके पहले का यह एक लेटर है. अब उसके पहले ई के पहले लेटर क्या क्या आता है? ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है. ई के तो पहले यही आता है. तो मैं इस सेट को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. अब दोनों तरीके को समझ लीजिए. ये जो लिखने का तरीका है, दिस मेथड इज कॉल्ड रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड. इस मेथड में हम लोगों ने क्या किया कि उस सेट के सारे एलिमेंट को लिख दिया. और ये जो दूसरा मेथड है, इसमें हमने क्या किया, सारे एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको. हमने एक वेरिएबल x का यूज़ किया और एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, इस x जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. मैंने बताया कि मैं एक वेरिएबल x का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जिसको यह x सेटिस्फाई करेगा.
तो x किस, अब ये x जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो कौन कौन से लेटर आएंगे, x इज ए लेटर बिफोर ई के पहले का लेटर है, वो a आएगा, b आएगा, c आएगा और d आएगा। आप समझ गए कि ये भी इसी सेट को डिनोट कर रहा है, ये भी, लेकिन ये दो तरीका होता है। ये जो तरीका होता है दिस इज कॉल्ड रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, और ये जो तरीका जो दूसरा है, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म आर प्रॉपर्टी मेथड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा नहीं है। तो ये मेथड बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको सारे एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोस्टर मेथड या टेबुलर, टेबल मतलब आप जानते हैं जहाँ पर हमको, या इसी को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब आप समझ लीजिए कि सारे एलिमेंट को लिस्ट करना है। वी हैव टू राइट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। तो यहाँ पे मैं सेट के सारे एलिमेंट को लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सभी एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ वेरिएबल एंड ए प्रॉपर्टी विच इज सेटिस्फाइड बाई दैट वेरिएबल। तो दिस मेथड इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड से ये ज़्यादा, या लिस्टिंग मेथड से ज़्यादा इसको हम लोग जानते हैं, रोस्टर मेथड सिंपली। ओके, तो नाउ आई विल गिव यू some example in part 5 video, 5th video, because there is a time is about to now over, and अगर मैं इसको लंबा कर देता हूँ तो ये कंप्रेस कर दिया जाएगा वीडियो आपका बहुत ज़्यादा, और ये सब ब्लर्ड हो जाएगा। तो कोशिश तो यही रहेगी कि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, लेकिन बच्चों इतने कम समय में आपको एक एग्जाम्पल भी मैं ठीक से नहीं समझा सकता, तो फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, वी विल मीट यू ऑन पार्ट 5th वीडियो। ओके।